Yes, hello students, welcome back to the yet another informative session. What is the molar concentration? What is the molar concentration of the solution? What is the molar concentration of the solution of the solute particle in human blood? Solute particles in human blood if osmotic pressure is 7.2 atm, if osmotic pressure is 7.2 atmosphere, ठीक है, at normal body temperature of 37 degree Celsius. 37 degree Celsius. Okay. So what is the molar concentration of solute? Means molarity. Human blood, osmotic pressure is given to you 7.2 atm, temperature is given 37 degree Celsius. We will add 273 to it, okay, and it will become 310 Kelvin. Clear? After substituting the formula into pi equal to CRT, okay, now the pressure is given in atm. So remember which R, what is the value of R you will use? 0.0821, okay. It becomes 0.283 mole per liter. 0.283 mole per liter. Clear? So students, these were the colligative property. Now we are moving to the next topic of the chapter called abnormal molar masses. Called abnormal molar mass. Abnormal molar mass. Student, we have done colligative property. Colligative properties were of dilute solutions, okay, dilute solutions के लिए थी. और colligative property बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती थी. ये दो फैक्टर्स थे colligative property के. एक तो वो वेरी dilute solutions की प्रॉपर्टी है, कंसनट्रेटेड की नहीं है. दूसरा दे डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके. अर्लियर जब हमने colligative प्रॉपर्टीज डिस्कस की तब हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर हमने कुछ ऐसे वाले सॉल्यूट लिए थे लाइक सुक्रोज और विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना. जब इनको हम वाटर में डालते हैं तो ये डिसोसिएट नहीं होते हैं, मतलब इनके नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं होते हैं. बट व्हाट इफ अगर हम कहते हैं सॉल्यूट को डालते हैं सॉल्यूशन के अंदर और नंबर ऑफ पार्टिकल या तो इंक्रीज हो जाए, लाइक KCl आपने डाला तो KCl एक सिंगल पार्टिकल है, जब आपने इसको वाटर में डाला तो आपको K+ मिलेगा और Cl- मिलेगा, तो यहाँ दो पार्टिकल हो गए, है ना. सिमिलरली अगर आपने मान लो कोई और ऐसा पार्टिकल डाल दिया लाइक एसीटोन वगैरह जिनको वाटर में डाला एंड दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दे कंबाइन टुगेदर और एक साथ रहने लगे वो, तो हमने मान लो दो एसीटोन के मॉलिक्यूल डाले, अब वो एक सिंगल की तरह काउंट हो रहा है, मतलब दे बिकम डाइमर और ट्राइमर. तो इस केस में क्या होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, तो इस केस के अंदर अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो हमने पिछले फॉर्मूले किए थे उनसे मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो हमारे जो मोलर मास हैं वो एग्जैक्ट नहीं आएंगे, ओके. सो दैट इज द टॉपिक कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मासेस, ओके, एबनॉर्मल मोलर masses. So we know colligative properties were used to calculate the molar mass of solute, but only when solute must not associate or dissociate. That means
नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एंड आफ्टर सेम रहें. बट व्हाट इफ द केस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन टेक्स प्लेस. द केस ऑफ डिसोसिएशन of solute and case of association of solute. Okay, now electrolyte dissociates to give two or more ions in solution like KCl, NaCl, है ना, CH3COOH. When they are dissolved into the solution, they give two or more ions. Therefore, number of particles of solution increases. And when number of particles of solutions increases, the colligative property, value of colligative property also increases. Okay, so what I am saying, if electrolytes are added to the solution, then they give two or more particles or ions into the solution. Hence, number of particles increases. Hence, number of particles increases. Therefore, colligative properties increases, because we know colligative properties depend on number of particles. One more thing students, हमने जितने भी colligative properties की like elevation in boiling point, okay, depression in freezing point, they all सब में हमारा ना molecular mass of solute नीचे की तरफ आ रहा था, आप formulas चेक कर सकते हैं. सब में molecular mass हमारा inversely proportional to the colligative properties आ रहा है सब में. Even the relative lowering in vapor pressure, okay, osmotic pressure, okay, सब में हमारा molar mass नीचे. तो अगर हमारे colligative property बढ़ रही हैं, which implies the molar mass of solute will decrease. मतलब अगर मैं पुराने वाले फॉर्मूला यूज करके मोलर मास निकालता हूँ सॉल्यूट का, तो वो एक्चुअल मोलर मास नहीं आएगा. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं. बच्चों मैंने लिया KCl को डाला वाटर में, तो क्या मिला, K प्लस और Cl माइनस. अर्लियर मैंने लिया एक पार्टिकल, मुझे मिले एक और एक दो. ठीक है, अगर मैं लेता 100 तो मुझे मिलता 100 प्लस 100. ठीक है, सिमिलरली इफ आई टेक n तो आई विल गेट 2n. डबल हो जाते हैं पार्टिकल, डबल हो जाते हैं यहाँ पर पार्टिकल, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज Cp will also become double. Colligative properties become double. Therefore, molar mass become, yes, half. Very good. Molar mass become half. Okay. Like अगर normal molar mass हम KCl का calculate करें, normal molar mass of KCl अगर हम calculate करें तो K का हमारा हो गया 39, Cl का हो गया 35.5, तो दिस विल बिकम 74.5. दिस इज द नॉर्मल. ठीक है, 70 ग्राम पर मोल, एक मोल का मॉलिक्यूलर मास. ओके, नॉर्मल मोलर मास. और बच्चों अगर मैं ये वाले फॉर्मूले यूज करके निकालता ना, तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास मेरा कितना आता है, इसका ऑब्जर्व्ड मोलर मास, दैट विल बी कॉल्ड ऑब्जर्व्ड मोलर मास और कैलकुलेटेड मोलर मास. ऑब्जर्व्ड मोलर मास और कैलकुलेटेड मोलर मास 74.5 अपॉन 2, that is equals to 37.25. 37.25. So molar mass will become half. Okay, how? If I use these formulas, मेरे पास आंसर एक्चुअली आना चाहिए था 74.5, बट मेरे पास कैलकुलेटेड आंसर क्या आएगा, 37.25. कब आएगा ये, जब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व हों जो डिसोसिएट होते हैं. अर्लियर मैंने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी यहाँ पर पिछली प्रीवियस क्लासेस में, तो वहाँ पर हमारे पास हमने ऐसे सॉल्यूट लिए थे जो डिसोसिएट नहीं होते हैं, एसोसिएट भी नहीं होते हैं,
इसलिए हमारे वहाँ जो आंसर्स थे वो करेक्ट थे, ठीक है ना। बट अगर डिसोसिएशन हो गया तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताऊं कि मेरे पास मैंने लिया यहाँ पर K2SO4 potassium sulfate in water, it will give 2 K plus ions and 1 sulfate ion. So if I take 1, we are getting 2 plus 1 3, है ना, और हम लेते हैं n तो हमें क्या मिलेगा 3n, तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी 3 टाइम्स, ओके, और मोलर मास क्या हो जाएगा m/3, तो नंबर ऑफ पार्टिकल से वो डिवाइड मतलब इतना कम आएगा। तो बच्चों आपको डिसोसिएशन का केस तो समझ में आ गया, अब एक बार एसोसिएशन के केस को भी समझ लेते हैं कि वहां पर मोलर मास कैसे अफेक्ट हो जाता है। हाउ डज द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट affected and when molecules associate, okay, the case of association, okay. Now two or more molecules to form two or molecules can form dimer or trimer or tetramer, means 4 etc, ठीक है। सो इन सच केस नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे बच्चों, सो इन सच केस नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हाट डिक्रीजेज, इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी डिक्रीज हो जाएंगी क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, और मोलर मास सॉल्यूट का इंक्रीजेस, मोलर मास क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिया 2CH3COOH, बच्चों CH3COOH इज एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या CH3C CH3COOH एंड वन मोर मॉलिक्यूल, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं एसिटिक एसिड के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड सेट हो गया, यहाँ भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया इनके बीच में। नाउ ये हमने लिए थे 2 पार्टिकल, दे बिकम 1, अगर मैं लेता n दे बिकम n/2, सो Cp विल बिकम what half and molar mass will become double, molar mass will become double. So in the case of association हम देख रहे हैं बच्चों कि हमारा जो मोलर मास है वो डबल हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। डिसोसिएशन के केस में हमने क्या देखा था कि वहां पर वो डिक्रीज हो जाता है या कम हो जाता है, ठीक है ना। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझ लें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। So let us take an example, case of this association, okay. Now मैं लेता हूँ 2C6H5COOH benzoic acid, okay, 2C6H5COOH in benzene, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों C6H5C डबल बॉन्ड OH, यहाँ भी C6H5COH डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ भी हमने देखा कि हमने जब पार्टिकल लिए 2 तो इट बिकम्स 1, अगर हम लेते हैं यहाँ पर n तो ये हो जाता है n/2 और Cp हो जाती हमारी हाफ, ठीक है। इट फॉर्म्स डाइमर, क्या बोलेंगे इसको डाइमर, 2 मॉलिक्यूल जुड़ के एक सिंगल बना दिया है ना,
और मॉलिक्यूलर मास हो जाता डबल, मॉलिक्यूलर मास हो जाता डबल। तो अगर मैं इसमें नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अगर हम देखें किसका, बेंजोइक एसिड का C6H5COOH का, अगर हम नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास देखें तो ये होता है बच्चों आपका 122 ग्राम पर मोल, 122 ग्राम पर मोल। और हम इस फॉर्मूले से अगर कैलकुलेट करते, जो अब तक करते आए हैं, तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास हमारा आता 244 ग्राम पर मोल, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास आता 244 ग्राम पर मोल। ओके, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम पूरा सिलेबस आपके लिए लाएंगे इधर ऑन माय चैनल टॉपर्स पॉइंट। तब तक के लिए आप लोग जा सकते हैं। नमस्ते।